Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. The topic which I am going to discuss with you in my today's lecture, that is hydrocephalus. As the name indicating hydro means water and cephalus means head. बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक कॉन्जेनिटल डिजीज कंडीशन है हाइड्रोसेफलस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पे क्या होता है इस कंडीशन में, देयर इज़ अ अबनॉर्मल अकोमुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इनसाइड द इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑफ द चाइल्ड. जो भी पेशेंट होगा हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि कॉन्जेनिटल कंडीशन है तो बाय बर्थ ही जो हमारे पास बेबी होगा बाय बर्थ उसमें हम ये नोटिफाई कर पाएंगे दैट द चाइल्ड इज़ हैविंग द हाइड्रोसेफलस. अभी क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे एंड व्हाट आर द इटोलॉजिकल फैक्टर्स बिहाइंड कॉजिंग दिस कंडीशन हाइड्रोसेफलस, ये सब देखने के लिए आपको जो है वो पूरा वीडियो जो है वो लास्ट तक कंप्लीट सुनना पड़ेगा. सो आई होप आप वीडियो लास्ट तक कंप्लीट सुने. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हाइड्रोसेफलस. Start with the topic hydrocephalus. The term hydrocephalus is derived from the Greek word hydro. Hydro means water and cephalus means head. As the name implies, it is a condition in which the primary characteristic is excessive accumulation of fluid in the brain. So, this is a condition, congenital condition of the central nervous system in which there is a excessive accumulation of fluid in the brain. कौन सा फ्लूइड है, कैसे उसका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है ब्रेन में, ये भी नेक्स्ट में आपको बता रही हूँ. The definition: hydrocephalus is the abnormal accumulation of cerebrospinal fluid in the intracranial spaces. तो यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ है कौन सा फ्लूइड है, cerebrospinal fluid, और ब्रेन में कहाँ पे उसका accumulation ज़्यादा हो रहा है, in the intracranial spaces. और hydrocephalus is an abnormal accumulation of cerebrospinal fluid, that is CSF, in the ventricles and the cavities of the brain. This causes increased intracranial pressure inside the skull and may cause progressive enlargement of the head. Before telling you regarding the incidence of the hydrocephalus, I just want to add one thing in this, that the clinical studies have indicated that the formation rate of cerebrospinal fluid to be about 20 ml per hour. और अगर हम इसका पर डे का कैलकुलेशन अगर लेते हैं, नीड अबाउट 500 ml पर डे ये इसका अमाउंट होता है इन एडल्ट एंड इन चिल्ड्रन. एंड जो टोटल अमाउंट होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, द वॉल्यूम ऑफ दैट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स एंड द सब अरेक्नोइड स्पेस, that is to be age dependent, but reaches the adult volume of 150 ml by the age of 5 years. And इंसिडेंस की अगर हम बात करें, सो द इंसिडेंस ऑफ प्राइमरी हाइड्रोसेफलस में सिर्फ एक ही कंजेनाइटल abnormality यहाँ पे है, दैट्स ओनली हाइड्रोसेफलस विदाउट द स्पाइना बाइफिडा इन्वॉल्वमेंट इन दिस is approximately 1 in 2500 live births, making it one of the most common developmental disabilities, more common than Down syndrome and deafness. It is the leading cause of the brain surgery for children, and in the past 25 years, death rates associated with this hydrocephalus have decreased from 54% to 5%, just because nowadays we are having a very good medical facilities हमारे पास है, ठीक है, advanced technology है to assess that whether the fetal is growing properly inside the mother womb or not, तो क्या कोई congenital abnormality है, तो वो सब चीज़ें हम identify कर पाते हैं. And the occurrence of the intellectual disability has decreased from 62% to 30%. Cerebrospinal fluid के बारे में जैसे भी मैंने आपको बताया, the normal amount of CSF is about 150 ml, and the CSF formed by the choroid plexus absorbed by the arachnoid villi, and normally about 500 ml of CSF formed every day, and an equal amount is to be absorbed. So this is the structure inside the brain regarding the कौन सी layers हैं और कैसे कैसे ये pass on होता है. So this is the normal CSF circulation through the lateral ventricle, say third ventricle, then fourth ventricle, then central canal of spinal cord and subarachnoid space, and then the CSF is to be absorbed in the venous sinuses by the arachnoid villi. So by foramen of Monroe and the aqueduct sylvus and foramen of Lucica,
इनके थ्रू जो है ये आगे से आगे पास ऑन और सर्कुलेट होता है। Next is the types: communicating hydrocephalus and non-communicating hydrocephalus. These are the types of hydrocephalus. So firstly, I will discuss with you regarding the communicating hydrocephalus. Communicating hydrocephalus is a condition that results when the arachnoid villi are unable to adequately absorb the cerebrospinal fluid. So यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली क्या है, जैसे यहाँ पे आप ये मैंने बताया आपको सर्कुलेशन की CSF जो है दैट इज़ टू बी प्रोड्यूस बाय द करोइड प्लेक्सस इन द वेंट्रिकल्स, और उसके बाद वो पास ऑन होता है फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल टू द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल एंड एस्कैप्स टू द बेसल, जो हमारे पास फोरामेन ऑफ लिसिचिका एंड मैग्नेट के थ्रू ये पास ऑन होता है एंड इट रीचेस टू द अराक्नोइड विलाई एंड वेयर इट इज टू बी गेट अब्जॉर्ब्ड इनटू द वेनस कैनाल्स एंड द साइनसेस। ठीक है, सो ये इसका पूरा सर्कुलेशन है। बट अगर ये इसके थ्रू अब्जॉर्व नहीं होता है, मीन्स लास्ट तक आते आते ये साइनस वेनस के पास आके जो है वो अब्जॉर्व नहीं हो रहा है, हमारे पास जो विलाइज हैं दोज वर नॉट कैपेबल इनफ टू अब्जॉर्व दैट cerebrospinal fluid, देन इंट्रावेंट्रिकल एंड सब अराक्नोइड हैमरेज हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि प्रोडक्शन रेट इज़ द सेम, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है बट वो अब्जॉर्व नहीं हो पा रहा है। तो प्रोडक्शन रेट सेम रहेगा और अब्जॉर्प्शन कम हो रही है, तो वहाँ पे उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन में बताया कि देयर इज इंक्रीज इन द cerebrospinal fluid का जो अमाउंट है, तो दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन द इंट्रावेंट्रिकुलर, जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा और हैमरेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड इन्फेक्शियस प्रोसेस सच एज meningitis may also render the arachnoid villi to be non-function, may also be due to the overproduction of CSF। जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन रेट सेम है बट देयर मे बी, हो सकता है इन केस ऑफ कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस कि इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गई। देर इज अ प्रॉब्लम इन द रीअब्जॉर्प्शन बट देर इज ऑल्सो प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन रेट ऑफ द cerebrospinal fluid. दिस इज रेयर एंड इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द करोइड प्लेक्सिस पैपिलोमा और करोइड प्लेक्सिस कार्सिनोमा। ठीक है, अगर कुछ ऐसी कंडीशन, कैंसरस सिचुएशन या ऐसा कुछ बनता है, करोइड प्लेक्सिस पैपिलोमा, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक टाइप का बिनाइन ब्रेन ट्यूमर होता है जो यूजली कॉमनली बच्चों में देखा जाता है, एक टाइप का कैंसर। तो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है कि कहीं ना कहीं ओवर प्रोडक्शन हो रही है cerebrospinal fluid की। नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस इज अ कंडीशन that results when the ventricular system does not communicate with the arachnoid villi due to some obstruction। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रीवियस कंडीशन थी कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, यहाँ पे क्या था, प्रोडक्शन हो रही है नो मैटर्स की वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, वो प्रोडक्शन हो रही है उसकी और वो वहाँ से सर्कुलेट भी हो रहा है बट रीअब्जॉर्प्शन पावर कम हो चुकी है। देन इन केस ऑफ नॉन कम्युनिकेटिंग, प्रोडक्शन जो है वो तो है बट वो आगे पास ऑन नहीं हो पा रहा सो दैट कि वो प्रॉपरली सर्कुलेट हो सके और फिर जाके ऑब्जॉर्व होगा, तो वहाँ पे वो पास ऑन नहीं हो पा रहा है। सो देयर इज अ नॉन कम्युनिकेशन। सो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हम ऐसे इसको इजीली मेमोराइज करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, cerebrospinal fluid जो है वो आगे पास ऑन नहीं हो पा रहा है एंड दैट इज ड्यू टू कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो किसके बीच में नहीं हो रहा है, बिटवीन द अराक्नोइड विलाई और cerebrospinal fluid वहाँ तक नहीं आ पा रहा है सो दैट कि वो उसको ऑब्जर्व कर सके। cerebrospinal fluid is produced in the ventricular system but cannot flow to the arachnoid villi to be reabsorbed. Such obstruction can occur when the pathways are blocked by a tumor, congenital abnormalities of the brain, cyst, inflammation from the infection, or any other condition that interferes with the patency of these pathways. Next is the etiology of hydrocephalus. Congenital भी होती हैं, intrauterine infection है, mainly rubella, toxoplasmosis, cytomegalovirus के थ्रू एंड कंटिन्यू विद द कॉन्जेनिटल ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन या देयर इज अ मालफॉर्मेशन ऑफ द अराक्नोइड विलाई कि वो ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड एक्वायर्ड में क्या है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है लेटर ऑन लाइफ में या ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से बच्चे को लेटर ऑन हाइड्रोसेफलस की प्रॉब्लम हो जाती है। नियोप्लाज्म स्पेस ऑक्युपाइंग लेजन्स लाइक ट्यूबरकुलोमा। ठीक है, सो इट्स अ फॉर्म लंप लाइक फॉर्मेशन कैंसर ट्यूमर की फॉर्म में एंड सबड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है। ठीक है,
और एब्सेस और ग्लायोमास, एपेंडायोमोमा, ठीक है, ये ग्लायोमास एंड एपेंडायोमोमा जो है ये हमारे पास कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर की क्लासिफिकेशन में हमारे पास आते हैं ये। एंड क्रोइड प्लेक्सस पैपुलम में मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन टाइप का एक बिनाइन ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है। तो मैलिग्नेंट तो नहीं होता, पास ऑन नहीं होता है, वो स्प्रेड नहीं होता है, बिनाइन ही रहता है, वो यूजली बच्चों में ज़्यादा देखा गया है ये। एंड स्यूडोमोटर सेरिब्राई, ठीक है। सो स्यूडोमोटर सेरिब्राई जो है एज अ नेम इंडिकेटिंग स्यूडो, ठीक है, तो फॉल्स ही है ये। इट इज़ अ फॉल्स टाइप का ट्यूमर की प्रेजेंस है ब्रेन में, ऐसा परसीव किया जाता है क्योंकि उसके जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं ब्रेन ट्यूमर की तरह। दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं स्यूडोमोटर सेरिब्राई। और केमिकल हाइपर विटामिनोसिस हो सकती है विटामिन ए का। एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर विच इंक्लूड्स द हर्लर सिंड्रोम, ठीक है। हर्लर सिंड्रोम मैं आपको बताना चाहूँगी इज कॉज्ड बाय अ वेरिएशन इन द one type of gene and the name of that gene is the IDUA gene and basically ये जीन जो होता है इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्शन किसी एंजाइम का वो करते हैं एंड दैट एंजाइम इज़ द अल्फा एल आइडिरोनिडेज, एक एंजाइम है हमारे पास, उसका स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए इसको बनाया गया इस जीन को, तो उसका ही यहाँ पे एक वेरिएशन हो जाता है। और बेसिकली वो जीन जो ये एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो एंजाइम यहाँ पे प्रॉपर नहीं बन पाता है। सो दैट एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल समवेयर टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ शुगर्स इन द पेशेंट्स बॉडी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हमारे पास डीजेनरेटिव एट्रोफी ऑफ द ब्रेन एंड आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशंस, रप्चर्ड एन्यूरिज्म, cavernous sinus thrombosis. So there are number of conditions which were somewhere leading to the hydrocephalus condition. एंड नेक्स्ट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या ऐसे हम साइंस और सिम्टम्स नोट कर पाएंगे बच्चे में जो कहीं ना कहीं हमें बताएंगे कि देयर दिस पर्टिकुलर इन्फेंट और चाइल्ड इज हैविंग हाइड्रोसेफलस। सो इन केस ऑफ इन्फेंट्स, head grows at abnormal rate, anterior frontal is tense, often bulging and non-pulsatile, and scalp veins are dilated and markedly so when infant cries. So जब बच्चा क्राई करेगा तो scalpy veins जो वो dilate होते हैं और हम उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं कि हाँ इस टाइप का यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से वो वेन्स हमें थोड़ा सा विजुअलाइज होना शुरू हो जाती हैं। Macquin sign is a sign in which there is an increase in the intracranial volume and the bones of the skull become thin and the sutures become palpably separated to the produce the cracked pot sound on the percussion of the skull, ठीक है। तो क्योंकि उसमें जस्ट CSF का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है एंड ड्यू टू दैट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड देयर इज अ इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम, वो भी इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो स्कल की बोन्स हैं वो थिन हो जाती हैं और सूचर्स जो हैं वो पाल्पेबल हो जाते हैं। और जब हम उसको ऐसे परकशन करते हैं बच्चे के स्कल पे तो एक क्रैक्ड पॉट की जैसे साउंड आती है वैसे उसके हेड से साउंड आती है। सो दैट पर्टिकुलर साउंड शोइंग दैट दिस इज मैक्विन साइन। एंड फ्रंटल बुशिंग विद द डिप्रेस्ड आइज, ठीक है। तो उसका फ्रंटल जो बोन है तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें अपीयर होता है विद द डिप्रेस्ड आइज एंड द साइन इज नोन एज सनसेट साइन। सो सेटिंग सन साइन या सनसेट साइन हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे सनसेट होता है तो हमें वो बिल्कुल हाफ जैसे धीरे धीरे नीचे 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 हाफ हाफ होता नजर आता है। एंड सेम लाइक दैट आइज रोटेटेड डाउनवर्ड इन विच स्क्लेरा मे बी विजिबल अबव द आइरिस। और ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है CSF अमाउंट की वजह से, उसकी वजह से ऐसा होता है कि उसका हमें ऐसा लगता है कि उसकी आइज़ पे भी एक प्रेशर हो रहा है आइज़ के ऊपर, तो उसको स्क्लेरा मैक्सिमम हमें दिखाई देता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये यहाँ पे सनसेट साइन है, इसकी आइज़ को इंडिकेट करता है ये। नेक्स्ट, फीड्स पुअरली, pupils are sluggish with unequal response to the light एंड चेंजेस इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्वाइट ऑब्वियस है, उसका इतना प्रेशर उसका इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो हम सब ऑब्जर्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड क्राइज व्हेन पिक्ड अप एंड क्विट्स व्हेन अलाउड टू लाई स्टिल एंड इफ हाइड्रोसेफेलस इज अलाउड टू प्रोग्रेस देयर विल बी डिसरप्शन इन द lower brainstem function as manifested by difficulty in the feeding and a shrill and brief high-pitched cry. Eventually the skull becomes enlarged and the cortex is destroyed.
इफ द कंडीशन प्रोग्रेस रैपिडली, एकदम से कंडीशन रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है, द इन्फेंट में डिस्प्ले एमिसिस एंड somnolence एंड सीजर्स एंड कार्डियोपल्मोनरी डिस्ट्रेस हो सकता है. एंड इन केस ऑफ चाइल्डहुड एज पे ये नो डाउट ये कॉन्जेनिटल तो नहीं रहा होगा, एक्वायर्ड ही उसकी क्लासिफिकेशन में जाएगा. सो कभी भी किसी का कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं या किसी को लेटर ऑन लाइफ में जैसे कुछ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हुआ है या पोस्ट इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज हुआ है या इंट्राक्रेनियल ट्यूमर है लाइक ट्यूबरकुलोमा, ग्लायोमा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये सब कंडीशंस कहीं ना कहीं लीड कर देती हैं एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलस को क्रिएट करने के लिए. तो उस एक सिचुएशन में भी ऑलमोस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सेम ही होंगे. हेडेक ऑन अवेकनिंग विद इम्प्रूवमेंट फॉलोइंग एमिसिस और अपराइट पोस्चर. तो हेडेक तब होता है जैसे बच्चे को, अगर बच्चे जैसे लेटा है, ठीक है, तो उसको वो प्रेशर ज़्यादा फील करेगा रादर देन कि वो उस प्रेशर की वजह से उसको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगा. और अगर वो जैसे स्ट्रेट अगर हम खड़ते हैं, हमारा पोस्चर अपराइट पोस्चर पे हम आएंगे तो वो थोड़ा सा उसको रिलीफ फील होता है कि वो थोड़ा फ्लूइड अगर नीचे की तरफ पास होता है तो. एंड पैपिलोडेमा, स्ट्रैबिस्मस, इरिटेबल एंड लेथार्जिक, एपैथेटिक, कंफ्यूज्ड एंड ऑफन इनकोहेरेंट, बल्जिंग ऑसिपिट. ठीक है, सो इस टाइप के जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. फिजिकल एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो उसका फीचर्स ही ऐसे होंगे उसके स्कल के, फेस के, तो कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिफाई होता है कि बच्चे को हाइड्रोसिफिलस है. एंड पॉजिटिव ट्रांसल्यूमिनेशन ऑफ द इन्फेंट हेड एंड टिपिकल क्रैकपॉट साउंड, दैट इज मैकविन साइन, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ऑप्थेल्मोस्कोपी हम कर सकते हैं, MRI, CT स्कैन, क्रेनियल अल्ट्रासाउंडोग्राफी एंड एक्सरे ऑफ द स्कल. lumbar puncture, insertion of the spinal needle into the subarachnoid space between the lower lumbar and the vertebra. और ये है नॉर्मल CSF का जो काउंट में क्या क्या वेरिएशंस आती हैं और अब नॉर्मल में क्या क्या वेरिएशंस आएंगी, तो ये यहाँ पे दिया है. इसके बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना अमाउंट CSF का ज़्यादा हो रहा है, पर डे कितना होना चाहिए और कितना ज़्यादा हो रहा है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. और कितना हमें वहाँ से उसके ट्रीटमेंट के टाइम पे वहाँ से उसको ड्रेन आउट करना है, ताकि सो दैट कि बेबी का या इन्फेंट का, चाइल्ड का वहाँ पर प्रेशर हम थोड़ा सा रिलीव कर सकें. मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफिलस डायरेक्टेड टुवर्ड्स, जो मेन हमारा जो एक हमारा गोल होना चाहिए, दैट इज टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड टू प्रिवेंशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जितना हो सके, एंड मैनेजिंग द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द पैथोलॉजी. तो फर्स्ट हमारा यही है कि सबसे पहले जितना हो सके हमें उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करना है. आफ्टर दैट होगा कि चलो जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है उन्हें भी हमें प्रिवेंट और मैनेजमेंट की तरफ उसकी स्ट्रेटेजीज हमें प्लान करनी चाहिए. एंड एट लास्ट जो एग्जैक्ट कॉज है उसको फिर हम वहाँ से ट्रीट करेंगे. सो medical management include the use of osmotic diuretics and loop diuretics to reduce the CSF production, and medical management is temporary relief but main management is the surgery. जैसे मैंने कहा कि पहले हम उसको रिड्यूस करेंगे उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर और उसका जो प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशंस तक ना पहुंच पाए, तो वो सब चीज़ें पहले करेंगे. एंड जो मेन इसका मैनेजमेंट होगा दैट इज़ अ सर्जिकल ट्रीटमेंट. देन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, अ शंट इज मेड ऑफ रेडियोप्लास्टिक एंड हैज़ अ वेंट्रुलर कैथेटर प्रेशर वाल्व. हम इसमें शंटिंग करते हैं एंड दैट पर्टिकुलर शंट इज कंसिस्टिंग ऑफ दीज ऑल कंपोनेंट्स में ये सब चीज़ें होता है. वेंट्रुलर कैथेटर, pressure valve, pumping chamber and distal catheter that directs the flow of CSF from the ventricle to the other area of the body. क्योंकि रीज़न क्या है, एक तो हो सकता है वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो रही है या वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है जिसकी वजह से वो आगे पास ऑन नहीं हो रहा है, या पास ऑन भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी ठीक है बट ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, तो फिर भी उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. जो भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको वहाँ से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा. सो दीज आर द टाइप ऑफ जो सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है. एंडोस्कोपिक थर्ड, वेंट्रिकुलोस्टमी एंड कोरोइड प्लेक्सेक्टमी, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट विच इज़ नोन एज VP शंट, and ventriculoatrial shunt, ventriculopleural shunt and ventriculo-gallbladder shunt. So first is endoscopic third, ventriculostomy. An alternative procedure to shunt surgery is an endoscopic third ventriculostomy. डायरेक्ट अगर हम थर्ड वेंट्रिकल में, जैसे ये
पास ऑन होता है फ्रॉम द कोराइड प्लेक्सस में इसकी फॉर्मेशन होती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, एंड इट पासेस फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल्स टू द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। तो उस थर्ड वेंट्रिकल के पास हम अगर एक ओपनिंग कर देते हैं, देन दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स मेकिंग अ होल इन द फ्लोर ऑफ द ब्रेन एंड अलाउइंग द ट्रैप्ड cerebrospinal fluid to escape to the surface of the brain where it can be observed instead of inserting a shunt. Next is ventriculoperitoneal shunt। तो वेंट्रिकल से हम शंटिंग करेंगे थ्रू द पेरिटोनियल, जो हमारे पास कैविटी है वहां पे हम इसको शिफ्ट करेंगे फ्लूइड को। So a ventriculoperitoneal shunt, a VP shunt is a long plastic tube that allows the fluid to drain from the brain to the another part of the body, and here the another part is the peritoneal cavity, and this drainage prevents the increase in the pressure on the brain and caused by the hydrocephalus. So यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये है लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। एंड नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल ये है कि देखो इसका स्ट्रक्चर कितना प्रॉपर है, बट इन केस ऑफ हाइड्रोसिफिलस द ब्रेन इज टू बी कंप्रेस्ड ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ द स्पाइनल फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इसका स्पेस जो है वो ब्रेन के पार्ट्स है वो कंप्रेस हो जाते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस शंट सिस्टम टू ड्रेन द स्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पेरिटोनियल। A VP shunt has at least 3 parts. The first part is the ventricular catheter, which goes into the brain, and the second part is the valve, which controls the pressure within the brain, and the third part is the distal catheter, which is underneath the skin and connects the other part of the VP। means ventricular एक पोर्शन पे हुआ, वेंट्रिकल्स में हमने डाला वो कैथेटर, और उससे एक वाल्व भी हमारे पास होगा, और कैथेटर जो है वो अंडर नीथ द स्किन के अंडर उसको इंसर्ट किया होगा टू द पेरिटोनियल कैविटी, और वहाँ पे वो फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए जो एक प्रेशर है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वो थोड़ा कम होगा बेबी के हेड में, और वाल्व सिर्फ यही चीज़ रखने के लिए कि हम कंट्रोल कर सकें कितना हमें शिफ्ट करना है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में और कितना नहीं करना है। तो उसके प्रेशर को चेक करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको हम शिफ्ट करते रहेंगे। वार्निंग साइंस ऑन द वीपी शंट नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अभी वो शंटिंग प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कुछ वार्निंग साइंस वो शो करते हैं। अ हेडेक दैट हर्ट्स मोर एज टाइम पासिस। तो कुछ टाइम के लिए तो ठीक फील हुआ होगा, धीरे धीरे सेम कॉम्प्लिकेशन सेम साइंस वैसे ही अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चे में, दैट मीन्स कि अभी वो शंट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। द चाइल्ड एक्ट्स इरिटेटेड। This may be the only sign of a headache in a child who is young or cannot speak, and vomiting हो सकती है with a little or no nausea, feeling sick to his or her stomach, and changes in the personality. For example, a child who is easy to deal with become very hard to handle all of a sudden। ठीक है, तो पहले ठीक हो चुका था बट इमीडिएटली ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत इरिटेट हो रहा है और वो बहुत ट्राई कर रहा है, तो वो हमें लगा कि दिस शंट इज जस्ट नॉट एक्टिंग प्रॉपरली। Swelling of the skin that runs along the path of the VP shunt, and a bulging soft spot on child's head, and a vision problem आना शुरू हो जाएगी, and a loss of some mental and physical abilities that he or she had already mastered। जो पहले चीज़ उसने अच्छे से की थी तो वो अभी अच्छे से नहीं कर रहा है। What is a shunt infection? A shunt infection occurs when bacteria infect the tissue around that shunt। तो वो ventricular peritoneal है या ventricular atrial है या ventricular pleural है, कुछ भी, या ventricular gallbladder है, कोई भी पोर्शन जहाँ पे जो another पार्ट है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है near around that shunt। When the tissue is infected, it can cause the VP shunt to stop working properly, and a shunt that does not work when then cause an increase in the pressure within the brain, and this increase in pressure can damage the brain or threaten the child's life। So fever हो सकता है बच्चे को, redness or swelling of the skin that runs along the path of the VP shunt, and pain around the shunt or around the shunt tubing। Next is ventriculoatrial। So सेम ही रहेगा, जैसे मैंने कहा कि सेकंड पोर्शन डिफरेंट होता है, वहीं से वेंट्रिकल में ही हम शंट को इंसर्ट करते हैं एक पोर्शन को कैथेटर का, and it shunts the cerebral ventricle through the jugular vein and superior vena cava into the right cardiac atrium, and it is used when the patient has abdominal abnormalities। अगर उसको हैं तो हम नहीं कर पाएंगे पेरिटोनियल कैविटी में, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को पेरिटोनाइटिस है, morbid obesity and or after extensive abdominal surgery,
So the shunt requires repeated lengthening in a growing child. ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में वेंट्रिकल से शंट को, एक पिक्चर में हमारे पास वीपी शंट है और एक में वीए वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। लंबोपेरिटोनियल शंट भी होता है, ठीक है, बट ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव हम इसको नहीं इतना यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ तक आते आते सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अमाउंट है वैसे ही इतना नहीं बचता है, तो यहाँ से हम कितना उसको लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ज़्यादा ब्रेन पे ही प्रेशर होता है, तो वहाँ से हमें उसको शिफ्ट करना चाहिए, बट कुछ ऑप्शंस नहीं होंगे तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट, तो ये प्लूरल कैविटी में इज कंसिडर सेकेंड लाइन एंड इट इज़ यूज्ड इफ अदर शंट टाइप्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो प्रोग्नोसिस डेट कितना कैसा है इसका? प्रोग्नोसिस डिपेंड्स ऑन अर्ली डायग्नोसिस। जितना जल्दी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे दैट द चाइल्ड इज हैविंग हाइड्रोसेफलस, उतना जल्दी हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो होने से प्रिवेंट कर पाएंगे। With the improved diagnostic and the management techniques, the prognosis is becoming considerably better, and approximately 2/3 of the patients will die at an early age if do not receive the surgical treatment. Complications is a herniation of brain, spontaneous arrest due to the natural compensatory mechanisms, and persistent इंक्रीज जो है वो हमारे पास अगर आईसीपी का लेवल इंक्रीज रहता है, इंटरनल प्रेशर एंड द ब्रेन हर्निएशन, तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस में आएंगे, एंड डेवलपमेंटल डिले एंड डिप्रेशन। नर्सिंग मैनेजमेंट, फर्स्ट इज टीच द फैमिली अबाउट द मैनेजमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डिसऑर्डर। So for this, treatment is surgical by direct removal of an obstruction and the insertion of the shunt to provide primary drainage of the CSF to a extracranial compartment, यूजली पेरिटोनियम या जो डिफरेंट मैंने आपको बताया। सो द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द शंट आर इन्फेक्शंस एंड द माल फंक्शंस, तो हम उनके बारे में उनको बताएंगे, एंड द अदर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड सबड्यूरल हेमेटोमा, जो भी पॉसिबिलिटी उसमें आएंगे तो हम उनको सब बताएंगे। एंड थर्ड वेंट्रोस्टमी इज अ न्यू नॉन शंटिंग प्रोसीजर यूज टू ट्रीट द चिल्ड्रन विद द हाइड्रोसेफलस and provide pre-operative nursing care. So for that we have to assess head circumference, fontanelles, cranial sutures, ठीक है, and firmly support the head and the neck when holding the child. Provide skin care for the head to prevent the breakdown, and give small frequent feedings to decrease the risk of vomiting and increase the prenatal newborn bonding. Provide post-operative nursing care. Assess the sign of increased intracranial pressure and check the following just as head circumference daily and anterior fontanelles for the size and the fullness and the behavior, so that हमें इसमें आइडिया लगेगा कि ज़्यादा फ्लूइड होने की वजह से हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज हो जाता है और फॉन्टेनेल भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो वो हमें पता चलेगा। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन विच मे इंक्लूड एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन and analgesics for the pain, and if there is increased ICP, elevate the head of the bed or allow the child to sit up to enhance the gravity flow to the shunt. Observe the child for abdominal distension and maintain intake output chart. Next is provide shunt care. जैसे मैंने कहा कि शंट इन्फेक्शन हो सकता है तो प्रोवाइड शंट केयर, मॉनिटर फॉर शंट इन्फेक्शन एंड माल फंक्शन विच मे बी कैटेगराइज्ड by rapid onset of vomiting, severe headache, irritability, lethargy, fever, redness along the shunt tract, and fluid around the shunt valve. Prevent infection and monitor for the shunt overdrainage. Then teach home care. Encourage the child to participate in age-appropriate activities as tolerated, and encourage the parents to provide as normal lifestyle as possible, and explain how to recognize the signs and symptoms of increased ICP. Subtle signs include changes in the school performances and intermittent headache and the mild behavior changes. Frequent developmental screening and follow-ups. So first nursing diagnosis, ineffective cerebral tissue perfusion related to increased ICP, एंड फॉर दैट जो इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं, गिव प्रॉपर पोजिशनिंग टू द बेबी, कीप द हेड ऑफ द बेबी इन द न्यूट्रल पोजिशन टू प्रमोट venous drainage, avoid extreme rotation and flexion of the neck as these can cause compression and distortion of the jugular vein which will further increase the ICP.
and elevate the head at 30 to 45 degree to aid in the venous drainage. Extreme hip flexion is also avoided as this position causes increase in intra-abdominal and intrathoracic pressures, which can produce a rise in the ICP. While turning, hold the head of the baby to avoid any stimuli and check for the abdominal distension. It also results in the increase of the ICP. Next is imbalanced nutrition less than the body requirement related to the reduced oral intake and vomiting. So for this we have to assess the nutrition status of the baby and weight the baby daily and record the weight and maintain the intake output chart of the baby. Provide exclusive breastfeeding to the neonate and infant up to 6 months of the age. For older children, offer small frequent feeding of the light food. Next is risk for impaired skin integrity related to the enlarged head. For this, we can assess the skin integrity of the baby and prevent the pressure on the enlarged head. Provide firm, soft pillow under the child's head. Keep the area clean and dry, and good skin care we have to provide to the child. Next is risk for infection related to the introduction of infecting organism through the shunt. So for that we have to check and record the vital signs of the baby, so that अगर infection होगा तो उसको fever होगा तो हम उसको identify कर पाएंगे. And use aseptic technique while doing any procedure of the baby on the baby, and wash the hands properly before touching the baby. Maintain the general cleanliness of the area and administer the antibiotics. Next is ineffective family coping related to the life-threatening problem of the infant. So for this we can tell the family about the disease condition, what are the causes, what are the treatment, and what is the prognosis for this condition. Educate them about the care of the baby, like maintaining the cleanliness, proper diet, skin care, positioning, and all that. Educate the family about the shunt and its purposes, and tell them about the assessment for the excessive drainage of CSF, and encourage them for treatment, compliances, and regular follow-up. So this is all about my today's topic, that is hydrocephalus. So अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो और ऐसे ही और लेक्चर्स चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें SS Pediatrics, and please like, share my videos. Thank you.